Hello everyone, welcome to my channel, and today we are going to continue with chapter revision congruence of triangles, and we are going to complete the last portion, that is up to question D we had completed. Today we are going to complete question E. So let us start with question E. Prove that triangle ABC is congruent to triangle DEF if first case angle A is equal to 72 degrees, angle B is equal to 65 degrees, AB is equal to 5 centimeters, angle D is equal to 72 degrees, angle E is equal to 65 degrees, and DE is equal to 5 centimeters. See, these are the two figures which we have to draw. ABC and DEF, these are the two triangles which we have to prove that they are congruent to each other. First thing, what is given? Angle A is given as 72 degrees. So we'll take the base as AB. तो 72 degrees ले लेंगे angle A. Angle B will be 65 degrees. Okay. And AB is given as 5 centimeters. Okay. Angle C we do not know. The bases are equal and the angles also are equal. That is, angle A is equal to angle D is equal to 72 degrees. Angle B is equal to angle E is equal to 65 degrees, and the included side, that is AB and DE, are equal to 5 centimeters. Therefore, we can prove that by angle side angle criterion, these two triangles are congruent. So let us write first, in triangle ABC and triangle DEF, angle A is equal to angle D, which is equal to 72 degrees, which is given here. Angle B is equal to angle E, which is equal to 65 degrees. It is also given. AB is equal to DE. AB is equal to DE is equal to 5 centimeters given. So, the triangle ABC is congruent to triangle DEF by angle side angle criterion. ठीक है, तो एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन के बेस पर ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन ई का फर्स्ट सब क्वेश्चन. मूव ऑन टू नेक्स्ट. सेकेंड क्वेश्चन है, यहां पे देखिएगा, angle A is equal to 90 degrees, angle B is equal to 47 degrees, BC is equal to 6 centimeters, angle D is equal to 90 degrees, angle F is equal to 43 degrees and EF is equal to 6 centimeters. अगर हम लोगों ने फर्स्ट ट्रायंगल लिया, एंगल A is 90 degrees, यानी कि ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल है एट राइट एंगल्ड एट A. ठीक है, तो एंगल B दिया है क्या, 47 डिग्रीज, और ये जो BC है वो 6 सेंटीमीटर्स, यानी कि हाइपोटेन्यूज जो है वो 6 सेंटीमीटर्स. सो लेट अस ड्रॉ दिस. ये दो एंगल्स मिल गए, ठीक है, और एक साइड दैट इज हाइपोटेन्यूज मिल गया है. हमें AB नहीं मिला है, BC मिला है. नेक्स्ट, सेकेंड ट्रायंगल इज DEF में एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्रीज ड्रॉ कर लिया, राइट एंगल एट D. एंगल F इज इक्वल टू 43 डिग्रीज, DEF है तो 43 डिग्रीज यहाँ पे एंगल F पे है. सो एंगल E क्या है वो हमें मालूम नहीं है, बट वी नो वन थिंग, एंड हियर ऑल्सो EF इज गिवन एज 6 सेंटीमीटर्स. तो इंक्लूडेड एंगल, इंक्लूडेड साइड नहीं दिया है, बट हाइपोटेन्यूज इज गिवन एज 6 सेंटीमीटर्स. सो हमें इतना मालूम है कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज व्हाट, 180 डिग्रीज. So angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degrees. Angle A is given as 90 plus angle B is 47 plus angle C is equal to 180 degrees. So the unknown angle is angle C, that we can find. तो angle C is equal to 180 degrees जो राइट हैंड साइड में है. लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, प्लस 90 प्लस 47. ऑपोजिट साइड में लाते ही माइनस 90 माइनस 47 होगा, दिस इज विच इज इक्वल टू 180 माइनस माइनस है दोनों जगह पे, तो साइन माइनस ही होगा. करेक्ट, दोनों का माइनस है तो साइन माइनस, तो दोनों सेम साइन है यानी ऐड करना पड़ेगा.
तो 90 और 47 को ऐड करते हैं तो 0 + 7 इज 7, 9 + 4 इज 13, तो -137 होगा। तो 180 - 137 क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा +180 - 137। सिंस एक का साइन प्लस है दूसरे का माइनस है, यानी ऑपरेशन जो है वो सब्ट्रैक्शन का होगा। सो 0 - 7 नहीं कर सकते, तो बोरो करना होगा। 10 - 7 इज 3, 7 - 3 यहाँ पे 7 रह जाएगा, 7 - 3 इज 4, 1 - 1 इज 0। ग्रेटर नंबर साइन, तो +180 इज ग्रेटर देन -137, तो +43 आएगा। एंगल C इज इक्वल टू 43 + 43 डिग्रीज। हमें मिल गया एंगल C एज 43 डिग्रीज। नाउ सिमिलरली यहाँ पे देखिएगा एंगल C 43 डिग्रीज है, एंगल F भी 43 डिग्रीज है, करेक्ट। यहाँ पे देखिए 90 47 और ये 43, तो 90 43 ऑलरेडी है, तो ये 47 होगा। एंगल E भी 47 ही होगा, करेक्ट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिएगा एंगल B इज 47 डिग्रीज, एंगल E इज इक्वल टू 47 डिग्रीज, एंगल C इज इक्वल टू 43 डिग्रीज, एंगल F इज इक्वल टू 43 डिग्रीज। दैट मीन्स EF is the included side, here BC will be the included side which is 6 centimeters, correct। तो by ASA एंगल साइड एंगल जो क्राइटेरियन है उसके हिसाब से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। सो लेट अस राइट एंगल A इज इक्वल टू एंगल D 90 डिग्रीज, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F विच इज 43 डिग्रीज, करेक्ट। क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स का जब सम होता है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स विल बी 180 डिग्रीज। तो 90 + 47 है तो ये 43 है, 90 + 43 ये 47 होगा। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल E इज इक्वल टू 47 डिग्रीज, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F इज इक्वल टू 43 डिग्रीज, करेक्ट। तो BC दिस साइड BC इज इक्वल टू EF इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर्स। So two angles, that is angle B and angle E are equal, angle C and angle F are equal, and the included side BC is also equal. Therefore, by angle side angle criterion, triangle ABC is congruent to triangle DEF. ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूव हो गया। इसके साथ ही हमारा चैप्टर जो है, चैप्टर रिवीजन कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।